خاص عبادت ہے جسے عید پینتیکوست کہا جاتا ہے۔ بائبل مقدس میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور ہمیں بھی اس اہمیت سے لطف اندوز ہونے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اس عید پینتیکوست کی عبادت میں ہم پر روح القدس نازل ہوتا ہے۔ اس کا عید پینتیکوست کا مطلب ہے نازل ہونا۔ تو آج ہم عید پینتیکوست منا رہے ہیں۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے 50 دن کے بعد یہ عید پینتیکوست کا جو دن ہے یہ ہماری زندگی میں آتا ہے۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے 40 دن بعد یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے اور 50ویں دن یہ عید پینتیکوست کا دن ہم مناتے ہیں۔ ہاللیلویا! اور ہم خداوند کے خاص کر بڑے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہماری زندگی میں یہ عید پینتیکوست کا دن عطا فرما دیا تاکہ ہم عید پینتیکوست سے سبق حاصل کر سکیں کہ عید پینتیکوست کی عبادت میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیسی مقدس ہے ہمارے لیے۔ یسوع مسیح جب زندہ ہوئے تو زندہ ہونے کے 50 دن کے بعد یہ عید پینتیکوست کا دن ہم مناتے ہیں۔ یعنی کہ 40 دن تک جب وہ روح زندہ ہوئے تو 40 دن تک اپنے لوگوں کو دکھائی دیے اور جب وہ آسمان پر اٹھائے گئے 40 دن کے بعد اور 50ویں دن یہ عید ہم مناتے ہیں۔ اور اس عید کو پینتیکوست کا دن جو ہے وہ میں نے بتایا ہے کہ کیوں کہا جاتا ہے۔ اس میں روح القدس کا زوال ہوتا ہے، یعنی کہ روح القدس آپ پر نازل ہوتا ہے اور روح القدس ایک ایسا معجزہ ہے، ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسا قوت والا لباس ہے جو ہم پر نازل ہوتا ہے، جو ہم پر اترتا ہے تاکہ ہم اس قوت سے لبریز ہو سکیں۔ تو جب ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ تم تمام دنیا میں جا کر، جب مرکز کی انجیل 16واں باب اس کے 15 سے 18 ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بڑی خوبصورتی سے لکھا ہے، اس نے بڑا بیان ہمارے لیے لکھا گیا ہے کہ تم جا کر دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ اور بڑی خاص بات ہے، سوچنے والی، سمجھنے والی، بڑی خاص اس میں بتایا گیا ہے، نقطہ رکھا گیا ہے کہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ یہ ایک تنقید کر کے گئی ہے، یہ ایک نقطہ رکھ دیا گیا ہے ہمارے سامنے۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، یہ معجزے ہوں گے۔ نمبر 1، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے۔ یہ کیا ہے کہ روح کا پھل ہے، یہ اس کی برکت ہے کہ وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے اور سانپوں کو اٹھا لیں گے۔ ایک بہت بڑی بات ہے کہ سانپ کو دیکھ کر تو ویسے ہی بڑا ڈر لگتا ہے، تو وہ کہتا ہے وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے۔ کون اٹھا لیں گے؟ جن پر روح القدس نازل ہوگا، جن کے پاس روح القدس کی برکت ہوگی، وہ لوگ یہ کام کریں گے، ان کی زندگی میں یہ کام ظاہر ہوں گے کہ وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے۔ نہیں، ایک بڑی خاص بات جو ہے عید پینتیکوست کے دن نازل ہوئی، وہ بڑی خاص ہے کہ وہ لکھا ہے کہ وہ نئی زبانیں بولیں گے، نئی
ज़बानें बोलेंगे। ये बड़ी खास निशानदेही की गई है उस दिन की कि वो नई नई ज़बानें बोलेंगे। और लिखा है कि अगर कोई उनको कोई हलाक करने वाली चीज भी पिला दी जाएगी तो उन पर कुछ असर नहीं होगा। अब उनको वो जहर भी दे देगा तो उन पर वो जो जहर है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर खुदा का जलाल है, खुदा का पाक रूह उसकी जिंदगी में काम कर रहा है। खुदा उनका जो पाक रूह है उस चीज को, उस जहर को वो कैंसल कर देता है। हमें जरूरत है कि हम रूह कुद्दस को हासिल करें। रूह कुद्दस एक ऐसा मौजूदा है हमारी जिंदगी में मेरे अजीजों, जिससे वो हमारी लाइफ बदल जाती है, हमारी जिंदगी बदल जाती है, हमारा रहन सहन बदल जाता है, हमारी बातचीत बदल जाती है, हमारा हर एक तरीका का जो है वो बदल जाता है। कैसे कि रूह कुद्दस हम पर नाज़िल हो जाता है। ये बड़ी बरकत है रूह कुद्दस की कि रूह कुद्दस जब नाज़िल होता है तो जिंदगी बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं रूह कुद्दस की बरकत से। और जो बात हम सोचते हैं कि लिखा है कि वो हमारी जिंदगी में होना नहायत बहुत जरूरी है, कहते हैं कि रूह कुद्दस हमारी जिंदगी में होना जो है बहुत जरूरी है। क्यों वो है, क्यों जरूरी है? हमें नहीं चाहिए रूह कुद्दस, क्या जरूरी है? बताओ हमें क्या क्यों जरूरी है? भाई दिस इज क्यों जरूरी है जिंदगी में? तो अगर रूह कुद्दस एक ऐसा मौजूदा है जिससे हमारी जिंदगी जो है वो नहायत ही जरूरी हो जाती है, उसमें अहमियत आ जाती है उस जिंदगी में जिस जिंदगी में रूह कुद्दस नाज़िल हो जाता है। क्योंकि ईमान की तस्दीक होती है। तो कहते हैं कि वाई क्यों जरूरी है? उसमें ईमान की तस्दीक की जाती है, उसमें ये ईमान ज़ाहिर हो जाता है कि ये यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, क्योंकि उसमें यीशु मसीह के जो है वो काम ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, उसमें यीशु मसीह की झलक नाज़िल होना शुरू हो जाती है। और जो लिखा गया है कि अमाल अगर 19वां बाब उसकी पहली 2 आयत जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुद्दस पाया? हालेलुया। एक सवाल कर दिया गया कि तुम ईमान लाए, लेकिन तुम ईमान लाए तो उसमें रूह कुद्दस तुमको मिला? ईमान जब हम ले आते हैं तो लिखा है कि क्या तुमने रूह कुद्दस हासिल कर लिया? रूह कुद्दस में मिल गया? क्या रूह कुद्दस तुमने पा लिया? जो रूह कुद्दस पाने के लिए ठहरते नहीं और इंतजार नहीं करते, रूह कुद्दस उनको हासिल नहीं होता, क्योंकि वो कोशिश नहीं करते। दुआ में जो ठहरना है उनको बहुत बुरा लगता है, यीशु को वक्त देना उन्हें अच्छा नहीं लगता। और जब लंगर की लाइन लगी हो, चाहे 200 आदमी खड़ा हो और उसमें सारा दिन खड़े रहेंगे, और जब यीशु की बारी है रूह कुद्दस हासिल करने के लिए तो उसके बंदों के साथ वो ठहरते नहीं है। हमें जरूरत है यीशु मसीह के साथ ठहरने की, तो ही रूह कुद्दस हम पर नाज़िल होगा। लिखा है कि हम ठहरते तो है नहीं है, क्योंकि हम दुआ में बिल्कुल नहीं ठहरते और कहते हैं हम रूह कुद्दस मिल जाए, रूह कुद्दस हमें हासिल हो जाए, रूह कुद्दस हमें जिंदगी में काम करना शुरू कर दे, हम सांपों को भी उठा लें, हमें कुछ जहर भी पिला दे, हमें कुछ ना हो। लेकिन क्या है कि उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। इंतजार क्या करना है कि रूह कुद्दस नाज़िल हो, उसके लिए झुको, ठहरो, दुआ में झुक जाओ। हम इंतजार नहीं करते, हम ठहरते नहीं हैं, हम दुआ में नहीं ठहरते, तो कहते हैं रूह कुद्दस मिल जाए। तो इस तरह मेरे लिए नहीं होता। जब हम यूहन्ना की लूका की इंजील का 24वां बाब उसकी 49वीं आयत पढ़ते हैं तो ये यीशु मसीह का वो वादा उसने पूरा कर दिया।
जिसका मेरे बाप ने वादा किया मैंने उसको तुम पर नाज़िल करूंगा। हालेलुया। ये उसका वादा है कि मैं रूह कुदस तुम पर नाज़िल करूंगा। जाके ये जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, लेकिन जब तक आने वाला से तुमको लिबास ना मिले इस यरूशलेम शहर में ठहरे रहो। हम ठहरते नहीं हैं, हम इंतजार नहीं करते, हम फटाफट हमें मिल जाए। पंजाबी के मसाले तो कहते हैं कि झोली चढ़ाने के मुंह से पहले हम इंतजार नहीं करते, हम खुदा के आगे झुकते नहीं हैं, हम खुदा के वादे का इंतजार नहीं करते। लिखा है कि जिसका मेरे बाप ने वादा किया उस वादे को पूरा होते होते वक्त लगता है, हम इंतजार नहीं करते वो वक्त को। हमें जरूरत है, उसने कहा कि तुम उसी शहर में ठहरे रहो, हम ठहरते नहीं हैं, हम रुकते नहीं हैं। वो कहते हैं जब तक तुम्हें लिबास कुव्वत का ना मिले तुम ठहरे रहो। तो खुद का लिबास कौन सा है? रूह कुदस का लिबास। हमारा जब पहला बाप उसकी 4 से 5 आयत पढ़ते हैं तो बड़े गौर से देख रहे हैं कि और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बड़े बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतजर रहो। हालेलुया। बाप के वादा पूरे होने का इंतजार करो, उसी शहर में ठहरे रहो, उसी दुआ में झुके रहो, उसी यीशु के आगे झुके रहो कि जब तक वो तुम्हें रूह कुदस का लिबास ना दे दे। क्या हम झुकते हैं? दो बहनों हम झुकते हैं दुआ के लिए? हम तो 2 मिनट 1 मिनट घुटने टेढ़े होते हैं, सब में की रोने लगती है। हम दुआ में बैठते हैं तो हमारा जो माइंड है वो यहाँ नहीं होता, वो घर के काम में होता है। फलाने को भी फलाना काम भी मेरा क्या करना, यहाँ भी स्यापा करना, यह भी करना, यह भी करना है, और रोटी भी पकाने। क्या कि ऐसे रूह कुदस नाज़िल नहीं होता। दुआ में ठहरने की जरूरत है, दुआ में झुकने की जरूरत है, तो फिर रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा। कहता है कि मेरे बाप के वादा पूरे होने के मुंतज़र ना हो, इंतजार करते रहो। हम झुकते नहीं हैं उसके आगे, हम दुआ में नहीं बैठते हैं। दुआ में बैठ भी जाए तो हम फर्जी तौर पे बैठते हैं, किसी को बात पूछी जाए तो उसको पता नहीं होता, क्योंकि उसका जो है वो जिस्म इधर होता है और जो दिल जो दिमाग है वो बात उसमें नहीं होता। तो जब तक हमारा दिल हमारा दिमाग यीशु में नहीं व्यवस्थ होगा उस वक्त तक रूह कुदस हम पर नाज़िल नहीं होगा। हमें जरूरत है, रूह कुदस जो है वो हमारी जरूरत है। वो लिखा जैसे मैंने पहले बताया कि रूह कुदस एक मौजज़ा है। मौजज़ा क्या है? उससे हमारी जिंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है। जब रूह कुदस नाज़िल होता है तो हमारी जिंदगियां बदल जाती है, उसमें मौजज़ात आ जाते हैं। तो वजह क्या है कि ठहरने की जरूरत है, यीशु के वादे को इंतजार करने की जरूरत है। वो तो बार बार कहता है कि मेरे बाप का जो वादा है उसके पूरा होने के मुंतजर रहो। जिसका जिक्र तुमसे मुझसे सुन चुके हो, कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया है, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि इंतजार करना सीखो, झुकना करना सीखो, दुआ में ठहरना सीखो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद कुदस से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। थोड़े दिनों के बाद इंतजार है जो हम नहीं करते। क्यों फादर जी हम इंतजार नहीं करते? फटाफट हो जाएगा। तो खुदा तो कहता है इंतजार करो, मेरे बाप ने जो वादा किया है उसके वादे के पूरे होने के मुंतजर रहो, इंतजार में रहो। किसी वक्त भी खुदा जो है तुम्हें बरकत दे सकता है। झुके रहो, ठहरे रहो। हम
मुकद्दस नहीं पढ़ते, 10 मिनट के लिए ठहरते नहीं हैं उसके आगे, दुआ में नहीं ठहरते, दुआ में बैठ भी जाए तो हमारा मन नहीं लगता। क्यों नहीं मन लगता हमारा दुआ में? क्योंकि हम खुदा के साथ से व्यस्त नहीं है। हम खुदा को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम रूह कुदस हासिल नहीं करते, हम उसे अपने मामलात के लिए इस्तेमाल करते कि खुदा मेरा ये काम कर, खुदा मेरा फलान काम कर, मेरा फलान काम कर। हमें ज़रूरत है रूह कुदस हासिल करने की। जब हम रूह कुदस हासिल करेंगे, नाज़िल होगा, तो लिखा है कि हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी। कैसे बदल जाएंगी? कि जब रूह कुदस नाज़िल होगा, यानी कि हमें रूह कुदस जो पाना है वो हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है, उसके बगैर हम कुछ नहीं है। लिखा कि थोड़े दिनों के बाद तुम्हें रूह कुदस मिलेगा। अगर शहर में किस जगह ठहरे रहो जहां लोग रूह कुदस पाने के लिए ठहरेंगे, हालेलुया, जहां तो मुकद्दस लोग हैं, जहां तो दुआ लोग खड़े हैं, तुम भी उनमें शामिल हो जाओ, तुम भी उनकी टोली में शामिल हो जाओ, ताकि तुम पर भी कुदस का जो सवाल है वो नाज़िल हो, तुम भी बरकत पाओ, तुम्हारी भी जिंदगियां बदले, तुम्हारे हालात बदले। पहला शमूएल उसका 10वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो पहला शमूएल उसको 19 बाब जब पढ़ते हैं तो शॉर्टकट सा करूँगा, तो लोग अपने आप को निजात याफ्ता समझते हैं। अब बहुत लोग जो है अपने आप को कहते हैं कि मैं निजात याफ्ता, मैं बड़ी दुआ करता हूँ, मैं तो बड़ी निजात याफ्ता हूँ, मैं तो बेरोज़ी करता हूँ, मैं तो पाक हूँ, मैं तो भी करता हूँ तो मैं पाक हूँ। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा कुछ और, खुदा का प्लान कुछ और है, खुदा हमसे कुछ और चाहता है। समझते हैं और है नहीं, हालांकि निजात देने वाला भी वही है और निजात पाने का तरीका भी वही है, निजात देने वाला भी वो है और निजात का तरीका बताने वाला भी वही है। तो जरूरत है ठहरने की, जरूरत है झुकने की। जैसे उसने कहा कि जब तक तुम्हें लिबास ना मिले यरूशलेम में ठहरे रहो, और आगे फरमाता है कि बात अभी कितने ठहर जाए, उसको तुमने कहा था कि तुम शहर में ठहरे रहो, असली कितने चलेगी, असली कितने जाके ठहरेगी? वो कहता है कि जहाँ तुम मुकद्दस लोग दुआ के लिए ठहरे हैं, तुम भी उनमें शामिल हो जाओ। तो साढ़े पैसे साढ़े नेक लोग ने वो कदे बातें जा तो कहीं यार जाते थे तो यार जो आए मेरे बाप हो गई ना यार तो धरती में बड़ा बड़ा जाए खतर जी ऐसी कहते हैं ना, आई बार बाप हो गई तो असं यहाँ से आ जाएंगे क्योंकि चौल आ जाएंगे तो फिर भी हाथ हो जाएगा। तो मालूम तो कहाँ से हासिल करोगे? तुम्हारे तो ज़हन में फतूर है, तुम्हारे तो दिमाग में यीशु है नहीं, तुम्हारे ज़हन में यीशु को तुमने जगह नहीं दी, तुमने तो शैतानी चरखों पर जगह दी हुई है। तो रुक इस तरह तुम्हारी जिंदगी में नाज़िल हो। हम इस चीज़ों को निकालें, परे करें इन चीज़ों को, तो झुक जाए, ठहर जाए, तो रूह कुदस जो है वो तुम पर नाज़िल हो। हमें जरूरत है कि हम रूह कुदस को हासिल करें। तीतस की किताब उसका 3रा बाब और 5वीं आयत पढ़ते हैं, बड़ी बात कहती है, बड़ा खास इशारा दे दिया है। अब मैंने जो बात की थी ना कि मैं बड़े काम करता हूँ अच्छे, मैं बड़े रोजे भी रखता हूँ, मैं तो यतीमें भी देता हूँ, तो है, लेकिन पौलुस रसूल फरमाता है कि ऐसे कामों से रूह कुदस नहीं मिलता। बड़े गौर से देखिएगा,
तीतस उसका 3वां बाप और लिखा है, तो उसने हमको निजात दी मगर राष्ट्रवादी के कामों के सबब से नहीं। हालेलुया। की बात आगे सामने कि हमारे उस कामों की वजह से नहीं उसने हमें निजात दी जो हमने खुद किए, जो हमने खुद काम करते हैं, वैसा काम करते हम खुद कर लेते हैं। तो कहते हैं कि इस वजह से नहीं तुम्हें निजात दी बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश और गुस्ल और रूह कुदस हमें नया बनाने के वसीला से। रूह कुदस जो है वो हमें नया बना देता है। जैसे हम पुराने कपड़े पहनते हैं तो जब एक नया सूट लेके आते हैं तो उसकी जो चमक है, उसकी जो ढलक है वो पुराने सूटों से अलग होती है। इसी तरह रूह कुदस जो है उसकी जब वो तुम पर नाज़िल होता है तो लिखा है कि वो हमें नया बना देता है, वो हमारी लाइफ को बदल देता है। जब रूह कुदस नाज़िल होता है तो वो जब हम काम ऐसे करेंगे तो वो देखेंगे कि मतलब वही था, कामों के सबब से लिखा है कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश। जब रूह कुदस नाज़िल होगा तो एक नई पैदाइश इंसान की हो जाती है। जो पुरानी चीजें हैं वो जाती रहती हैं और रूह कुदस जब नाज़िल हो जाता है तो इंसान पुरानी गुजरी हुई चीजों से वाबस्त नहीं रहता, उनको वो तर्क कर देता है। लिखा है कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। हालेलुया। ये पौलुस रसूल ने फरमाया है। और बाद लोग जो है अपने आप को वो देते हैं, धोखा देते हैं। ये किसी ने अगर निकाला है 2 तिमोथी इसका 3वां बाब 13वीं और 14वीं आयत अगर किसी ने निकाली है तो प्लीज वो काम करें। 2 तिमोथी 3वां बाब और 13वीं और 14वीं आयत। ये फ्रेब की बात है। लोग कैसा फ्रेब देते हैं, कैसे गुमराह करते हैं, कैसे उनको राह रास्ते हटा देते हैं और हम लोग कहते हैं हम उनके चक्रों में फंस जाते हैं। हमारे पास जो पहले जो कुछ होता है हम उसे भी गवा बैठते हैं। जो हमारे पास थोड़ी बहुत अच्छाई की बरकत होती है हम उनकी बातों में आ जाते हैं और वो भी गवा बैठते हैं। 2 तिमोथी उसका 3वां बाब 13वीं और 14वीं। 2 बाब जी 2 तिमोथी 3वां बाब 13वीं और 14वीं। इधर देख के 3वां बाब और 13वीं आयत से तिलावत करूंगी। और बुरे और धोखाबाज आदमी फरेब देते और फरेब खाते हुए हालेलुया फरेब खाते हैं हम धोखेबाजों से, उनकी बातों में फंस जाते हैं। उनके कामों को देख के उनका यकीन करना यीशु मसीह कहता है कि कामों से नहीं। जी बेटा बिगड़ते चले जाएंगे मगर तू उन बातों पर जो तूने सिखाई थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था ये जानकर कायम रह के तूने उन्हें किन लोगों से सिखाया था। हालेलुया। और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से नजात हासिल करने के लिए तनाई बख्श सकते हैं। आमीन। अब बख्श सकते हैं। थैंक यू। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हमारी 22 बरकत हो। अब आपने इस आयत में देखा कि लोग कैसे फरेब वाली बातें करते हैं तो उनमें लोग जो है वो फंस जाते हैं, धंसते चले जाते हैं, अपने आप को वो खराब करते जाते हैं, बिगाड़ते जाते हैं, उनके कामों को अपना लेते हैं और जो कुछ वो कहते हैं कि जो तुम्हें बातें सिखाई हैं उनका क्या हुआ, जो तुम्हें बातें बताई गई थी उनका
जो तुम्हारे अंदर वो चीजें डाली गई थी उसका क्या हुआ? कि एक झटके में सारी बाहर फेंक दी। कोई लिखा है कि ना कभी रूल कुदस मंगया तो ना कभी पाया। रूल कुदस मानते नहीं है। फादर जी ऐसे हमने कभी कोशिश की है, कभी किसी ने दुआ की हो कि खुदा मुझे रूह कुदस जैसी नेमत अता फरमा। ज्यादा से ज्यादातर लोग जो है वो अपने जो कामों का जो ये क्या कहते हैं कि टोकरा भरकर यीशु के आगे रख देते हैं। तो यीशु ये भी कर देते हैं, भी कर देते, कभी कार भी दे देते, चंगा जो घर भी दे देते, सोने की पुड़ी भी दे देते। तो दौलत तो बाबा दे भी लगता है कि मैं अच्छी तरह जिंदगी बसर कर सका। तो ये नहीं कहा कि खुदावंद मुझे रूह कुदस मेरे ऊपर नाज़िल कर। जैसा कि दाऊद के बेटे से खुदा ने पूछा कि तेरी क्या है, उसने कहा कि सुलेमान ने कहा जी मुझे अक्ल दनाई अता फरमा दे। जब हम खुदा से कोई अच्छी चीज मांगते हैं तो खुदा बड़ा खुश होता है। तो उसने कहा कि खुदा मुझे अक्ल दनाई अता फरमा। तो जब खुदा खुश हुआ उसने कहा कि यार इस अगर किसी को वो कहता तो मुझसे वो दौलत मांग लेता, मुझसे कोई रियासत मांग लेता, लेकिन यार ये कैसा बंदा है? इसने कहा कि मुझे तो अक्ल दनाई अता फरमा। तो खुदा ने जवाब दिया कि अक्ल दनाई से मैंने तुझे भरपूर कर दिया और जो बादशाही थी वो तुमने चुंगे की दे दी। हालेलुया, खुदा कितना मेहरबान है। अगर सच्चे दिल से आप रूह कुदस मांगे तो वो क्या हमें नहीं देगा? देगा। उसका वादा है कि वो रूह कुदस हम पर नाज़िल करेगा। लेकिन उसके लिए हमें दुआ में ठहरने की जरूरत है, हमें झुकने की जरूरत है, हमें इंतजार करने की जरूरत है। कि जो हम करते नहीं हैं, हम दुआ में झुकते नहीं हैं, हम यीशु के वादा पूरा होने की इंतजार नहीं करते। वो कहता है कि मेरे बाप ने वादा किया है उसके पूरा होने के मुंतजर रहो। जब रूह कुदस नाज़िल होता है वो हमारी जिंदगी को बदल देता है। ये आज हम ईद पेंतीकोस्त जो मना रहे हैं, यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो 50 दिन के बाद ये ईद पेंतीकोस्त का दिन मनाया जाता है। 40 दिन जब मुर्दों में से जी उठे तो 40 दिन के बाद आसमान पर उठाए गए तो 50वें दिन ये ईद पेंतीकोस्त का दिन हमारी जिंदगी में मनाते हैं। ये हमारे लिए तीसरी बड़ी ईद है। इसको बड़ी खास इबादत कहा जाता है। तो जैसे ईस्टर, क्रिसमस हमारी बड़ी खास इबादतें हैं, इसी तरह ईद पेंतीकोस्त की हमारे लिए बड़ी खास इबादत है। हमें जरूरत है कि हम हासिल करें। इसके बगैर हम कुछ नहीं है, इसके बगैर हम तन्हा हैं, इसके बगैर हम वीरान हैं। ये नाज़िल होगा तो हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी। वो कहते हैं कि एक मौजज़ा है। तो मौजज़ा तब होगा हमारी जिंदगी में जब हम झुकेंगे, जब हम दुआ में ठहरेंगे, जब हम खुदा से मांगेंगे, तो ही बिल्कुल संपन्न आता है। हालेलुया। तो कलाम तो बहुत है लेकिन वक्त को हमें देखना है। तो खुदा मुझे और आप सबको इस कलाम मुक़द्दस के वसीला से बड़ी बरकत दे और इस कलाम मुक़द्दस के वसीला से हम सबों की गलतियाँ, खताएँ, गुनाह उठा दिए जाए। हमें मसीह यीशु की अपनी ज़िंदगी हासिल हो। इस नासरी के नाम से आमीन।